বাঁকুড়ার রাঙামাটিতে আজ যেন গেরুয়া ঝড়ের পূর্বাভাস। নির্বাচনের রাজনৈতিক পারদ যখন তুঙ্গে, ঠিক তখনই বিষ্ণুপুরের মাটিতে দাঁড়িয়ে রাজ্যের শাসক দলের উদ্দেশ্যে একের পর এক তীক্ষ্ণ বাণ ছুড়লেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। নারী শক্তি থেকে শুরু করে আদিবাসী ও কুর্মী সমাজের বঞ্চনা এবং কেন্দ্রের প্রকল্প বনাম রাজ্যের বাধা, সব মিলিয়ে আজকের মেগা জনসভা থেকে তৃণমূলের বিরুদ্ধে রীতিমতো যুদ্ধ ঘোষণা করলেন তিনি। রেকর্ড ভাঙা জনসমুদ্রের সামনে দাঁড়িয়ে বাংলার মানুষের জন্য কি বার্তা দিলেন নরেন্দ্র মোদী, চলুন বিস্তারিতভাবে জেনে নেওয়া যাক। আপনাদের সবাইকে শুভ নববর্ষ জানাই। बांग्ला नववर्ष शुरू होने के बाद मेरी ये पहली जनसभा है। आज अक्षय तृतीया का शुभ दिन भी है। मेरी कामना है समस्त देशवासियों पर मां लक्ष्मी की कृपा बरसती रहे। साथियों, ऐसे पावन अवसर पर ये सभा मंदिरों के इस शहर में होना अपने आप में सौभाग्य की बात है। आप यहां दूर सुदूर से आए हैं, बहुत लंबा सफर करके आए हैं, और मैं देख रहा हूं कि बंगाल में जहां भी जाता हूं, हर जनसभा पहले से ज्यादा बड़ी होती जा रही है। सारे पुराने रिकॉर्ड टूट रहे हैं। मुझे बताया गया 2-2, 3-3 घंटे से लोग बैठे हैं। ये सुबह का समय है और मैं देख रहा हूं धूप में कितने लोग खड़े हैं। उधर हेलीपैड पर मैं कल्पना नहीं कर सकता हूं ये माहौल, ये प्यार, ये उत्साह, ये उमंग, ये निर्मम सरकार के प्रति गुस्से का भी प्रतीक है। इसका मतलब है बंगाल अब मान चुका है, बंगाल अब ठान चुका है। पाल्टानो दोरकार, पाल्टानो दोरकार। বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরে আয়োজিত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মেগা জনসভায় আক্ষরিক অর্থেই জনসমুদ্রের ছবি ধরা পড়ল। প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য চাক্ষুষ করতে এবং তার বার্তা শুনতে দূর দূরান্ত থেকে বিপুল সংখ্যক মানুষ এবং দলীয় কর্মী সমর্থকেরা ভিড় জমিয়েছিলেন সভাস্থলে। নিজের বক্তব্যের শুরুতেই উপস্থিত জনতাকে বাংলার শুভ নববর্ষের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানান প্রধানমন্ত্রী। একই সঙ্গে পবিত্র অক্ষয় তৃতীয়া উপলক্ষেও সকলকে অভিনন্দন জানান তিনি। সভার এই বিপুল ভিড় দেখে উচ্ছ্বসিত প্রধানমন্ত্রী এই দিন দাবি করেন যে তার প্রতিটি জনসভাতেই মানুষের উপস্থিতি এবং সমর্থন আগের চেয়ে বহু গুণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। তার কথায় বিষ্ণুপুরের এই বিশাল জনসভা অতীতের সমস্ত রেকর্ড ভেঙে দিয়ে এক অভূতপূর্ব জনজোয়ারের সাক্ষী হয়ে রইল। बीजेपी की पहचान ही महिला सशक्तिकरण से है, महिला सुरक्षा से है। इसलिए देश के हर राज्य में बहनें, बेटियां बीजेपी को सबसे अधिक आशीर्वाद देती हैं। हम चाहते हैं कि विकसित भारत बनाने में बेटियों की भूमिका का विस्तार हो। राजनीति में भी ज्यादा से ज्यादा बेटियां आए। लेकिन साथियों, आपने देखा है कि संसद में क्या हुआ है।
टीएमसी ने बंगाल की बहनों के साथ एक और धोखा दिया है। बंगाल की बहनें चाहती थी कि उनको 33% आरक्षण मिले। मोदी ने ये सुनिश्चित किया। बंगाल की बहनें चाहती थी कि ये 2029 से ही लागू हो। मोदी ने इसके लिए भी प्रयास किया, लेकिन टीएमसी नहीं चाहती थी कि बंगाल की बेटियां ज्यादा संख्या में एमएलए बने, ज्यादा संख्या में एमपी बने, क्योंकि बंगाल की बेटियां इनके महाजंगल राज को चुनौती दे रही है। इसलिए टीएमसी ने कांग्रेस के साथ मिलकर साजिश रची और इन्होंने महिलाओं के लिए 33% सीट सुरक्षित रखने का कानून नहीं बनने दिया। साथियों, ये वही टीएमसी है जो घुसपैठियों को लाभ देने के लिए हर कानून नियम तोड़ देती है। ये वही टीएमसी है जो धर्म के आधार पर आरक्षण देने में जुटी है, संविधान की भावनाओं का गला घूंटने में लगी हुई है। मैं माताओं बहनों से पूछना चाहता हूं, क्या टीएमसी को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? बहनों के अधिकारों को लूटने वाली टीएमसी को जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? टीएमसी को पक्की सजा होगी, पक्की सजा होगी। यहां দেশ জুড়ে নারী সমাজের উন্নয়ন ও রাজনীতিতে তাদের ভূমিকার কথা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী এই দিন জোর গলায় জানান, দেশের অন্যান্য রাজ্যের নারীরা বিজেপিকেই সবথেকে বেশি প্রাধান্য ও সমর্থন দিয়ে থাকেন। তিনি তার বক্তব্যে স্পষ্ট করে দেন যে রাজনীতিতে এবং দেশ গড়ার কাজে নারীদের স্বতঃস্ফূর্ত ও বিপুল পরিমাণ অংশগ্রহণ অত্যন্ত জরুরি। এরপরই রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানান তিনি। প্রধানমন্ত্রী অভিযোগ করেন যে তৃণমূল কংগ্রেস কখনোই চায় না যে বাংলার মেয়েরা অধিক সংখ্যায় বিধায়ক বা সাংসদ হয়ে বিধানসভা ও লোকসভায় জনপ্রতিনিধিত্ব করুক। তৃণমূলের এই শাসনকালকে তীব্র কটাক্ষ করে বাংলার বর্তমান পরিস্থিতিকে জঙ্গল রাজের সঙ্গে তুলনা করতেও শোনা যায় প্রধানমন্ত্রীকে। आज है उसकी बात टीएमसी सुनने को तैयार नहीं है। घुसपैठियों की सुनती है, कुर्मी समाज की नहीं सुनती है। लेकिन अपने वोट बैंक को संविधान के विरुद्ध आरक्षण देना चाहती है। कोलकाता हाईकोर्ट बार बार कह रहा है ये नहीं चलेगा, लेकिन महाजंगल राज ऐसा है कि ये कोर्ट की भी नहीं सुनते। महिलाओं के आरक्षण के लिए तो देश की संसद ने कानून बनाया है। अब समय आ गया है, देर नहीं होनी चाहिए, उसको बस लागू करना है। लेकिन टीएमसी को ये पसंद नहीं आ रहा है। मैं बंगाल की हर बहन बेटी से कहूंगा, अब टीएमसी को सजा देनी है। अब टीएमसी को बड़ी सजा देनी है। महाजंगल राज को महासजा मिलनी चाहिए। साथियों, आदिवासी बहनों बेटियों से तो टीएमसी बहुत नफरत करती है। बीजेपी ने देश को पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति दी, क्योंकि हम
आदिवासी समाज को सशक्त करना चाहते हैं, लेकिन टीएमसी ने आदिवासी बेटी के सामने अपना कैंडिडेट उतार दिया था। जैसे नेहरू जी ने बाबा साहब आंबेडकर को पराजित करने के लिए उम्मीदवार उतारे थे, वैसे ही कांग्रेस टीएमसी ने आदिवासी राष्ट्रपति को पराजित करने के लिए बहुत बड़ा खेल खेला था। यानी ये नहीं चाहते थे कि आदिवासी बेटी देश की राष्ट्रपति बने। साथियों, आज पूरी दुनिया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का सम्मान करती है, लेकिन आदिवासी विरोधी टीएमसी उनका अपमान करती है। यहां बंगाल में जब राष्ट्रपति जी आई तो टीएमसी ने कैसे उनका अपमान किया, ये पूरे देश ने देखा है। बंगाल की बहनें आदिवासी समाज के इस अपमान को, एक राष्ट्रपति के अपमान को कभी भी नहीं भूलेगा। आप मुझे बताइए, राष्ट्रपति का अपमान हमें मंजूर है क्या? নারী শক্তির প্রসঙ্গের পর প্রধানমন্ত্রী তার নিশানায় নিয়ে আসেন রাজ্যের কুর্মী সমাজের বঞ্চনার ইস্যুকে। অত্যন্ত কড়া ভাষায় তিনি অভিযোগ করে বলেন যে বর্তমান রাজ্য সরকার বা তৃণমূল কংগ্রেস কুর্মী সমাজের মানুষদের দীর্ঘদিনের দাবি দেওয়া ও অভাব অভিযোগের কথা একেবারেই শোনেন না, বরং তারা অনুপ্রবেশকারীদের সুযোগ সুবিধা পাইয়ে দিতেই বেশি আগ্রহী। পাশাপাশি আদিবাসী সম্প্রদায়কে বঞ্চনার ইস্যুতেও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সরাসরি ও তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেন প্রধানমন্ত্রী। এই প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তিনি দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু এবং সংবিধান প্রণেতা ডক্টর বি.আর. আম্বেদকরের নাম ও তাদের নীতিগুলি উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরেন। তার কথায় তৃণমূল কংগ্রেস সর্বতোভাবেই এটি আদিবাসী বিরোধী দল, যারা এই পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর মানুষদের প্রকৃত উন্নয়ন থেকে পরিকল্পিতভাবে বঞ্চিত করে রেখেছে। এমনটাই সুর শোনা গেল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর গলায়। की सुरक्षा, आप माताओं बहनों का सम्मान और आप माताओं बहनों की समृद्धि, ये बीजेपी की प्राथमिकता है। अभी टीएमसी सरकार के भ्रष्टाचार की वजह से बंगाल की महिलाओं को वो लाभ नहीं मिलता जो बीजेपी सरकार में मिला करता है, जो बगल में असम में मिलता है, जो बगल में त्रिपुरा में मिलता है, जो बगल में उड़ीसा में मिलता है, जो बगल में बिहार में मिलता है। वहां की महिलाओं को जो मिलता है वो आपको ये टीएमसी की निर्मम सरकार नहीं देने देती। बंगाल में बीजेपी सरकार बनेगी तो गरीब बहनों को मुफ्त राशन मिलेगा, कोई आपका राशन छीन नहीं पाएगा। बंगाल की बीजेपी सरकार महिलाओं को पक्का घर बनाने के लिए पीएम आवास योजना के तहत 1.5 लाख रुपए तक की मदद देगी। कितना टीएमसी की निर्मम सरकार ने यहां आयुष्मान योजना रोक रखी है। बंगाल में बीजेपी की सरकार बनते ही यहां महिलाओं को 5 लाख रुपए तक की मुफ्त इलाज की सुविधा देगी। कितने रुपए की? 5 लाख रुपए। अगर किसी महिला के घर में किसी को किडनी से जुड़ी बीमारी हुई है तो उसे सरकारी अस्पतालों में
मुफ्त डायलिसिस की सुविधा भी मिलेगी। 1 रुपया खर्चा नहीं होगा। साथियों, यहां बंगाल में अभी मातृशक्ति भरोसा कार्ड की बहुत चर्चा है। इससे बंगाल की हर बहन बहुत खुश है। इससे बंगाल की बहनों को हर साल 36,000 रुपये 36,000 टाका मिलेगा। 36,000। लेकिन इससे भी कहीं ज्यादा हमारी बहनों को सरकार से मदद मिलेगी। यहां बीजेपी की सरकार बनने पर गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपये की मदद दी जाएगी। संतान होने पर 5,000 रुपये की मदद केंद्र सरकार द्वारा भी बहनों को दी जाएगी। बेटियों को एजुकेशन के लिए 50,000 रुपये की मदद मिलेगी। बंगाल की 75 लाख बहनों की कमाई 1 लाख रुपये से अधिक हो, इसके लिए उन्हें लखपति दीदी अभियान से जोड़ा जाएगा। मुद्रा योजना के तहत बहनों को स्वरोजगार के लिए 20 लाख रुपये तक की मदद दी जाएगी। और खेती से जुड़ी बहनों के घर हर साल 9,000 रुपये अलग से आएंगे। बंगाल की मेरी माताओं बहनों, बंगाल में बीजेपी सरकार आपकी आमदनी भी बढ़ाएगी, आपकी आय भी बढ़ाएगी। इतना ही नहीं, आपकी बचत भी बढ़ाएगी। নিজের ভাষণে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেন যে দেশের মহিলাদের সম্মান রক্ষা এবং তাদের সার্বিক সমৃদ্ধি সাধনই হল ভারতীয় জনতা পার্টির অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ও অগ্রাধিকার। দেশের অন্যান্য রাজ্যের সাথে বাংলার তুলনা টানতে গিয়ে তিনি আসাম, ত্রিপুরা, উড়িষ্যা এবং বিহারের মতো রাজ্যের উদাহরণ তুলে ধরেন। তিনি দাবি করেন এই সমস্ত রাজ্যের মহিলারা বর্তমানে কেন্দ্রের যে বিপুল পরিমাণ সুযোগ সুবিধা ও সুরক্ষা ভোগ করছেন, দুর্ভাগ্যবশত বাংলার মহিলারা তার থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত। এর জন্য সরাসরি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারকে দায়ী করে তিনি বলেন, তৃণমূল নেত্রী ইচ্ছাকৃতভাবে বিজেপি শাসিত কেন্দ্রীয় সরকারের এই জনকল্যাণমুখী সুবিধাগুলি বাংলার মহিলাদের কাছে পৌঁছে দিচ্ছেন না। এরপর তিনি নারী কল্যাণে কেন্দ্রের চালু করা একাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের নাম উল্লেখ করেন এবং সেই প্রকল্পগুলি থেকে সাধারণ মানুষ কিভাবে উপকৃত হতে পারেন তা বিস্তারিতভাবে তুলেও ধরেন। आपका बिजली बिल 0 हो, बिजली बिल कितना कितना इसके लिए हर लाभार्थी परिवार को पीएम सूर्यघर योजना के तहत करीब 80,000 रुपये बीजेपी सरकार देगी। 80,000 रुपये बीजेपी सरकार यहां की बहनों को सस्ते एलईडी बल्ब भी देगी। साथियों, हम यहां बांकुड़ा की बहनों को हम पाइप से सस्ती गैस भी देने वाले हैं। इससे जुड़े प्रोजेक्ट का शिलान्यास करने का अवसर मुझे ही मिला था। यहां जब हमारी सरकार बनेगी तो इस प्रोजेक्ट पर और तेजी से काम किया जाएगा। साथियों, यहां पीने के पानी की बहुत समस्या है। टीएमसी का सिंडिकेट आपके नल को, आपके जल को भी लूट रहा है। बिहार में भाजपा एनडीए सरकार है, वहां करीब करीब हर घर तक नल से जल पहुंच चुका है। आप यहां भी बीजेपी का सीएम बनाइए, फिर बीजेपी का पीएम और बीजेपी का सीएम मिलकर बंगाल के आपके घर तक
नल से जल पहुंचाएगा। यानी बीजेपी की डबल इंजन सरकार बंगाल की बहनों को डबल बेनिफिट देने वाली है। साथियों, बंगाल के ये चुनाव नया इतिहास बनाने जा रहे हैं। टीएमसी का भय काल जाने वाला है। बीजेपी के भरोसे का सेवा काल आने वाला है। और साथियों, 4 मई को क्या नतीजे आने वाले हैं, इसकी झलक टीएमसी के बड़े नेताओं की भाषा में दिख रही है। कोलकाता में जो उनके बड़े नेता हैं, उनकी धमकियां, उनकी गुंडागर्दी की भाषा, उनका रोना धोना, ये 4 मई से पहले का एग्जिट पोल है। टीएमसी नेताओं की ये धमकियां खोखली है। इन धमकियों के पीछे टीएमसी वालों का डर है। ये डर ये है जो अब तक बंगाल के लोगों को डराते थे, वो अब बंगाल टाइगर की दहाड़ से खुद डर गए हैं। ये बंगाल टाइगर की दहाड़ है। और बंगाल टाइगर कौन है? बंगाल टाइगर ये बंगाल की जनता है। आप बंगाल के टाइगर हैं। अब बंगाल की जनता दहाड़ रही है। अब नहीं सहेंगे, हटा कर रहेंगे निर्मम सरकार। আর নয়। কেন্দ্রের একাধিক জনমুখী প্রকল্পের সাফল্যের খতিয়ান তুলে ধরার পাশাপাশি বাংলার সাধারণ মানুষের কাছে এই দিন একটি বড় প্রতিশ্রুতি দেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি মঞ্চ থেকে দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করেন যে আসন্ন নির্বাচনে বাংলার মানুষ যদি তাদের আশীর্বাদ দিয়ে বিজেপিকে বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করে, তবে রাজ্যের মৌলিক পরিষেবা সংক্রান্ত কোনো ঘাটতি থাকবে না। বিশেষ করে দৈনন্দিন জীবনের সাথে অঙ্গাঙ্গিকভাবে জড়িত বিদ্যুৎ পরিষেবা, রান্নার গ্যাস সরবরাহ এবং পরিশ্রুত পানীয় জল সংক্রান্ত যে সমস্ত চরম সমস্যা ও ভোগান্তি সাধারণ মানুষকে প্রতিনিয়ত পোহাতে হয়, ক্ষমতায় এলে সেই সকল সমস্যার স্থায়ী ও দ্রুত সমাধান করা হবে। তিনি বঙ্গবাসীকে জোরালো প্রতিশ্রুতি দেন। कला, सुर और संगीत की धरती है। इस धरती ने जोथा भट्टा जी, रामानंद चट्टोपाध्याय जी और यामिनी राय जी जैसी महान संतानें देश को दी है। बांकुड़ा के कण कण में, रज रज में शिल्प है। शिल्पियों का कमाल है। यहां कदम कदम पर टेराकोटा की समृद्ध कला और शिल्प के दर्शन होते हैं। मंदिर हो, मूर्तियां हो, टेराकोटा की समृद्ध परंपरा यहां की पहचान है। साथियों, ऐसे ही काम से जुड़े कारीगरों, मूर्तिकारों के लिए मोदी ने पीएम विश्वकर्मा योजना बनाई। से काम करने वाले भाई बहनों के लिए विश्वकर्मा समाज के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना बनाई। इसके तहत
केंद्र सरकार आधुनिक ट्रेनिंग और हजारों रुपयों की मदद दे रही है। आपके पड़ोस में ओडिशा है, वहां लगभग 7.5 लाख गरीब विश्वकर्मा साथियों ने इस कैंप में अप्लाई किया है। ओडिशा में बीजेपी सरकार है, इसलिए वहां तेजी से काम हो रहा है। करीब 25,000 साथी ट्रेनिंग पूरी कर चुके हैं और उन्हें 150 करोड़ रुपए से अधिक की मदद बैंकों से मिल चुकी है। साथियों, बंगाल के भी करीब 8 लाख लोगों ने अप्लाई किया है। वे भी विश्वकर्मा योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, लेकिन तृणमूल की निर्मम सरकार ये नहीं चाहती। यहां सिर्फ एक ही रजिस्ट्रेशन हुआ, एक बोलो, 8 लाख एप्लीकेशन और सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन। ये टीएमसी का असली चेहरा है। ये निर्मम सरकार आपके लिए निर्ममता का व्यवहार करती है। ये यहां की टेराकोटा धरोहर का अपमान है। ये राम किंकर बैठ जी की विरासत का अपमान है। बीजेपी सरकार आते ही पीएम विश्वकर्मा स्कीम का पूरा लाभ आपको देगी। ये मोदी की गारंटी है। নিজের রাজনৈতিক বক্তব্যের একেবারে অন্তিম পর্যায়ে এসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বাঁকুড়া জেলার সমৃদ্ধ ঐতিহ্য, স্থানীয় হস্তশিল্প এবং সর্বোপরি এখানকার খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষের ভূয়সী প্রশংসা করেন। জেলার প্রতিভাবান শিল্পীদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের যে বিশেষ ও আকর্ষণীয় প্রকল্পগুলি চালু রয়েছে, তিনি সেই দিন সেইগুলির কথা বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেন। তবে এই শিল্পোন্নয়নের প্রসঙ্গেও তিনি রাজ্যের তৃণমূল সরকারকে চরম নিশানা করতে ছাড়েননি। প্রধানমন্ত্রী ক্ষোভ প্রকাশ করে অভিযোগ করেন যে কেন্দ্রের এই অত্যন্ত লাভজনক প্রকল্পটির সুবিধা পাওয়ার আশায় রাজ্যের প্রায় 8 লক্ষ সাধারণ মানুষ ও হস্তশিল্পী আবেদন জানিয়েছিলেন, কিন্তু অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনকভাবে রাজ্যের বর্তমান তৃণমূল সরকারের রাজনৈতিক স্বার্থে সেই আবেদনগুলিকে আটকে দেওয়া হয়েছে এবং সাধারণ শিল্পীদের এই প্রকল্পগুলির সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে, এমনটাই অভিযোগ আনলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। आदिवासी क्षेत्रों के लिए बिना योजनाओं को भी ठीक से लागू नहीं करती। हमने भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान शुरू किया है। इसके लिए 80,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं, लेकिन टीएमसी का सिंडिकेट काम नहीं होने देता। साथियों, बंगाल में बिरहोर, लोढ़ा और टोटो जैसी अति पिछड़ी जनजातियां रहती है। इनके विकास के लिए पीएम जनमन योजना देश में चल रही है। ओडिशा में इसके तहत आदिवासी समाज के लिए 30,000 घर बनाए जा चुके हैं। त्रिपुरा में 16,000 से अधिक घर बने हैं, लेकिन बंगाल में एक भी घर नहीं बना है। कारण वही है क्योंकि यहां आदिवासी विरोधी, आदिवासियों की दुश्मन निर्मम सरकार है, तृणमूल की सत्ता है। साथियों, मैं यहां के नौजवानों और किसानों की पीड़ा समझता हूं। आलू किसानों के साथ जो निर्ममता हो रही है, वो बहुत बड़ा अन्याय है। मेरा आपसे एक ही आग्रह है, मंडियों में जब तक टीएमसी का सिंडिकेट रहेगा, किसानों का शोषण होता रहेगा। जब तक सिंडिकेट की लूट जारी रहेगी, तब तक यहां शिल्प का, उद्यम का विस्तार नहीं होगा। आप कमल का फूल खिलाइए और बीजेपी इस सिंडिकेट की परमानेंट सर्जरी करेगी। बंगाल में भी रोजगार मेले चलाए जाएंगे। बंगाल के युवाओं को बीजेपी भाता भी देगी
और समय पर सरकारी भर्तियों भी निकाली जाएगी और रोजगार मेलों में सामूहिक अपॉइंटमेंट लेटर दिए जाएंगे और ये भी मोदी की गारंटी है। साथियों, अब पहले चरण के मतदान के लिए कुछ ही घंटे शेष है। मेरा आप सभी से आग्रह है, हमारे सभी साथियों को भारी बहुमत से विजयी बनाएं। इस बार बीजेपी का सीएम शपथ ले, ये बंगाल की जनता का संकल्प है। पीएम सीएम एक साथ उन्नोयोने होवे दिने राते। इसी आग्रह के साथ आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत माता की, भारत माता की। প্রধানমন্ত্রীর এই জোরালো আশ্বাস এবং সভাস্থলের এই বিপুল উন্মাদনা আসন্ন নির্বাচনের ব্যালট বক্সে কতটা প্রভাব ফেলতে পারে, বাঁকুড়ার মানুষ কার পক্ষে নিজেদের রায় দেন, এখন সেই দিকেই সকলের নজর। ব্যুরো রিপোর্ট, বঙ্গদর্পণ।